So today's topic is ELISA, ICT and बताओ CLIA and Western blot. ठीक है, what is the full form of ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. ठीक है, next ICT, immunochromatographic test. ठीक है, CLIA, CLIA, chemiluminescent linked immunoassay, and last is Western blot, enzyme linked immunosorbent assay. क्या होता है ये? It is a immunological assay which can detect to the antigen or antibody present in the patient serum. Okay, the test performance of ELISA is very highly sensitivity and highly specific. Okay, more than 10 times sensitive as compared to ICT. ठीक है, ELISA is very highly sensitive. Now principle. What is the principle? ELISA is so named because it have two components. First is immunosorbent and other is substrate chromogen system. So what is the immunosorbent? It is a absorbing material which is made up of polystyrene and polyvinyl. ठीक है? That specifically absorb the antigen or antibody present in the patient serum. Okay? Enzyme is used to label one of the components immunoassay, antigen or antibody. Which enzyme? HRP, horse radix peroxidase, and ALP, alkaline phosphatase. Okay. Substrate chromogen system. This is the final step of ELISA. Okay. Substrate means hydrogen peroxide, H2A2. Substrate means H2O2. Chromogen means TMB. Most common use TMB. TMB full form tetramethyl benzidine. Okay. तो क्या होता है? The enzymes react. Enzyme means HRP. Okay, reacts with substrate H2O2 which turn activates chromogen. Chromogen means TMB substrate. ठीक है, TMB to produce color. इधर का प्रिंसिपल क्या हुआ? Enzyme reacts with substrate and activate to chromogen. And last is color productions. ठीक है? Sometimes the substrate is chromogenic in nature, P and PP, nitrile phosphatase. ठीक है, one reaction with enzyme it change the color. The color change detected by the spectrophotometry in ELISA reader. ठीक है, intensity of the light, intensity of the color is directly proportional to the amount of detection molecule. Okay, antigen or antibody present in the test serum. हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और HIV और स्क्रब टाइफस और डेंगू ELISA, NS1, IgM IgG. ठीक है, रखा हुआ है, सब दिखाते हैं. परफॉर्म्ड ए माइक्रो टाइटर प्लेट. दिस इज द माइक्रो टाइटर प्लेट. ठीक है, ये हमारी वेल है. दिस इज माइक्रो वेल्स. इसी पे हम ELISA परफॉर्म करेंगे. राइट, दिस इज माइक्रो टाइटर प्लेट. 96 वेल होता है इसमें. ठीक, ये किससे कोटेड है? ELISA वेल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल. ओके, ELISA kits are commercially available. ठीक है, contains all necessary reagents such as the enzyme conjugate, substrate, buffers and chromogens. ठीक है, इतना किट्स में आपको मिलेगा. राइट. अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर में सबसे पहले हम, ये हमारा ELISA वेल. ठीक है, ELISA वेल है ये. सबसे पहले हम सैंपल डाइल्यूएंट लेते हैं. ठीक है, देन सीरम सैंपल. ठीक, फिर इसको करते हैं इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट. ओके, देन वॉश विथ ELISA वॉशर, मैनुअल और ऑटोमेटेड. ठीक है, दोनों कर सकते हैं. देन ऐड द एंजाइम कॉन्जुगेट. ठीक है, फिर इंक्यूबेट फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स. ओके, देन ऐड द सबस्ट्रेट. ठीक है, देन ऐड द सबस्ट्रेट एंड इंक्यूबेट. लेकिन आप इनको इंक्यूबेटर में नहीं रखना है. ठीक है, इसको बाहर रखना है एट अ रूम टेम्परेचर विथ डार्क प्लेसेस. ठीक है, देन ऐड द स्टॉक सॉल्यूशंस. Okay, then read the plate in ELISA reader. That's it. ठीक है, this is the
प्रोसीजर, ये हमारा एलाइजा की किट, ठीक है, हेपा एलाइजा, हेपेटाइटिस बी का ये किट है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको, इसके अंदर सोल्यूशंस है, ठीक है, स्टॉप सोल्यूशंस है, दिस इज द स्टॉप सोल्यूशन, टीएमबी सबस्ट्रेट, टीएमबी डाइल्यूएंट, एंजाइम कॉन्जुगेट, ठीक है, ये पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, बफर सोल्यूशंस, ठीक है, ये हमारे पास कॉमर्शियली अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये वेल होगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड होगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा होता है जब हम वेल में पूरे सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारी एलाइजा वेल, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड द सीरम सैंपल, ठीक है, सीरम सैंपल ऐड किया, फिर यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट ऐड किया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ओके, देन स्टॉप सॉल्यूशन, देन प्रोड्यूस द कलर, ठीक है। ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोटेड एलाइजा माइक्रोवेल, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंजाइम, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, HRP, ठीक है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, देन सबस्ट्रेट एक्टिवेट द क्रोमोजन, ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ एलाइजा, कलर चेंज डिटेक्ट बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और एलाइजा रीडर। ये है हमारा टेस्ट किया हुआ, ठीक है, ये जो येलो कलर दिख रहा है ना आपको, ये सारे, ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके निगेटिव हैं, ठीक है। अब इस प्लेट को क्या करेंगे, हम उठा के एलाइजा रीडर में रीड करेंगे, ठीक है। एलाइजा रीडर में रीड करने के बाद, दिस इज द एलाइजा रीडर, दिस इज द ऑटोमेटेड एलाइजा वॉशर, यही दो इक्विपमेंट हमारे पास रहते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ एलाइजा, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने प्लेट को रीड किया, रीड करने के बाद हमें कुछ वैल्यूज मिली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओडी वैल्यू, ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाट इज दिस ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज अ मेजरमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हाउ मच लाइट इज एब्सॉर्ब बाय द कलर्ड सोल्यूशन इन एलाइजा वेल, ठीक। तो उसमें जो है ये हमारे वैल्यूज कुछ निकल के आए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, यू नो मीन, मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड पता है, हाँ, व्हाट इज मीन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मीन निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर हम कट ऑफ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ हमारा कितना है। सपोज हमारा जो कट ऑफ वैल्यू है ये 0.138, ठीक है, दो वैल्यू आई है, ठीक है। देन दूसरी वैल्यू आई 0.125, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द किट लिटरेचर, मोर देन 0.138, ठीक है, इससे ज्यादा जिसकी भी ओडी है कंसीडर एज पॉजिटिव, ठीक है। ओडी लेस देन 0.125, ठीक है, कंसीडर एज निगेटिव, ठीक है। इसमें ये सारी वैल्यूज, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, इससे ज्यादा है ना तो दिस इज कंसीडर एज पॉजिटिव, ओके। इसके बीच की जो वैल्यू होगी, ओडी बिटवीन 0.138 टू 0.125, दैट इज इक्विवोकल, ठीक है, इक्विवोकल, देन रिपीट टेस्ट, ठीक है। इक्विवोकल आने पे हम रिजल्ट को रिस्पैच नहीं करते हैं, देन रिपीट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एलाइजा का वैल्यू, ओडी वैल्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलाइजा ये पूछते हैं कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। कौन कौन सा, सैंडविच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो हम जो परफॉर्म करते हैं यहाँ पे सैंडविच एलाइजा करते हैं, ठीक है। सैंडविच एलाइजा क्या डिटेक्ट करता है, एंटीजन डिटेक्शन प्रेजेंट इन द पेशेंट सीरम, ओके। क्यों इसको सैंडविच बोलते हैं, बिकॉज एंटीजन गेट्स कैप्चर्ड एंटीबॉडी एंड डिटेक्टर एंटीबॉडी,
ठीक है, एक सैंडविच बन रहा है ना इधर, ठीक है, दैट इज नोन एज सैंडविच ELISA, ठीक है, बिकॉज द एंटीजन गेट्स सैंडविच बिटवीन ए कैप्चर एंटीबॉडी एंड ए डिटेक्टर एंटीबॉडी वेल्स कोटेड विद द कैप्चर एंटीबॉडी, ठीक है, जो वेल्स है ऑलरेडी कोटेड विथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, राइट, then at the patient's sample antigen antibody complex is formed, then primary antibody enzyme conjugate, then at the substrate chromosome produce the color, ठीक है, इसमें देखो ये हमारी ELISA वेल, ठीक है, ऑलरेडी कोटेड है कैप्चर्ड एंटीबॉडी, ठीक है, फिर हमने पेशेंट का सीरम डाला, दिस इज कंटेनिंग एंटीजन, सीरम कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है, पेशेंट का सीरम, ये हमारा एंजाइम कॉन्जुगेट लेवल, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी, ये हमारा सबस्ट्रेट, ये हमारा क्रोमोजन, ठीक है, देन प्रोड्यूस कलर जैसे हमने दिखाया था। तो इसमें TMB में क्या होता है, सबसे पहले ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, येलो आफ्टर एडिंग द स्टॉप सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ डायरेक्ट ELISA, ये क्या होता है, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन टेस्ट सीरम, ओके, प्राइमरी एंटीबॉडी टारगेटेड अगेंस्ट द सीरम एंटीजन इज लेबल्ड विद एंजाइम, ठीक है, वहां पे क्या था, इसमें क्या था सैंडविच वाले में कैप्चर्ड एंटीबॉडी, ठीक है, ये क्या है सीरम एंटीजन, प्राइमरी एंटीबॉडी लेबल्ड विद एंजाइम कॉन्जुगेट, ठीक है, एट द सबस्ट्रेट एंड क्रोमोजन एंड प्रोड्यूस द कलर, ठीक। फिर आता है इनडायरेक्ट ELISA, ये क्या होता है इसमें, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी और लेस कॉमनली एंटीजन इन टेस्ट सीरम, ओके, differ from the direct ELISA that secondary antibody targeted to FC portion of any human immunoglobulin is labeled with enzyme instead of primary antibody, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका जो वेल है वो कोटेड किससे है, एंटीजन से, ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी पेशेंट का सीरम, ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी बॉडी, ठीक है, एंजाइम कॉन्जुगेट सबस्ट्रेट एंड क्रोमोजन, देन कलर प्रोड्यूस। कॉम्पिटेटिव ELISA, ठीक है, एंटीजन इज टेस्ट सीरम competes with another antigen of the same types of coated on will to bind to the primary antibody. It is also used for the detection of antibody. यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी incubated primary antibody, ठीक है, with serum sample containing antigen, ठीक है, हम लोग पहले से इंक्यूबेट करके रखते हैं, then add the transfer the ELISA will, micro ELISA will, ठीक है, then wash with washer, ELISA washer, then add the enzyme conjugate, ठीक है, then wash again and then add the substrate and produce the color. अब आते हैं हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर, ठीक है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, बिकॉज अनलाइक ELISA and other immunoassays, the point of care test can be performed independent of laboratory equipments and deliver instant result, ठीक है, within 10 to 20 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, ICT का, बट ELISA का मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स, ठीक है, तो ये लेस टाइम टेकन है, ठीक है, और ये है इसको टाइम जो है कम है, और दूसरी चीज ये है इसका जो है दो प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, पहला है लेटरल फ्लो, दूसरा है फ्लो थ्रू एसे। ये पूछते हैं अगर आपके पास ये येलो वाला अगर दोनों रखा जाएगा, येलो वाला क्या है हमारा फ्लो थ्रू एसे, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज फ्लो थ्रू एसे एंड दिस वन इज लेटरल फ्लो एसे, ठीक है, इसमें जो सीरम बफर एंड कॉन्जुगेट क्या होगा, लेटरली फ्लो होगा, इसमें क्या होगा, वर्टिकली फ्लो होगा, एंड एब्जॉर्बिंग पैड, हम आगे बताते हैं वन बाय वन करके, ठीक है, ये सब पूछते हैं, ओके। Both the formats are available in diagnosis of various disease, malaria, hepatitis B, hepatitis C, HIV, H. pylori, ठीक है, syphilis and leptospirosis. Lateral flow assay, based on the lateral flow techniques, widely used in diagnostic of laboratories because its simplicity, low cost and rapidity, ठीक है. It can be used for both antigen or antibody detection in the patient sample, okay. Principle of ICT, antigen detections. The test system consists of nitrocellulose membrane, ठीक है, इसमें आपको जो है एक मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है, अभी पास में दिखाते हैं हम, ठीक है,
वो किससे बनी हुई है? एनसीएम, ये पूछते हैं नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज द एब्जॉर्बिंग पैड। जब हम कोई भी सोल्यूशन इस पे डालते हैं, सीरम, बफर, कॉन्जुगेट, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दिस इज द एब्जॉर्बिंग पैड। टू फॉर्मेट्स आर अवेलेबल, कैसेट फॉर्म एंड स्ट्रिप फॉर्म। दिस इज द कैसेट फॉर्म, दिस इज द स्ट्रिप फॉर्म, ठीक है, ओके। हाँ, यहां पे आपको 2 लाइन दिख रही होगी बेटा, ये है कंट्रोल, ये है आपका टेस्ट, ठीक है। कंट्रोल क्या है आपका? ये आपका HbA जी। द नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन इज कोटेड 2 places in the form of lines. A test line, ठीक है, टेस्ट लाइन कोटेड with the monoclonal antibody. The test line is coated with monoclonal antibody, okay, and the antibody targeted against the test antigen, okay, and control line is coated with the anti-species immunoglobulin. 2 लाइन है इसमें, ठीक है, कंट्रोल लाइन एंड टेस्ट लाइन। तो कंट्रोल लाइन किससे कोटेड हुई? एंटी स्पेसीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। टेस्ट लाइन इज कोटेड, यस, टारगेटेड अगेंस्ट द एंटीजन, टेस्ट एंटीजन, ओके। हाँ, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द टारगेट एंटीजन लेबल्ड विद द क्रोमोजेनिक मार्कर, ठीक है, कोलाइडल गोल्ड और सिल्वर। दिस इज द डिटेक्टेबल मार्कर, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर ये दिख रहा है लाइन, ये है हमारा कोलाइडल गोल्ड और सिल्वर। इट इज अ डिटेक्टेबल मार्कर, जो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या होगा? बोथ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोलाइडल गोल्ड कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द फ्री कोलाइडल गोल्ड लेवल्ड एंटीबॉडी मूव लेटरली along with the nitrocellulose membrane, that is called lateral flow, ठीक है। टेस्ट बैंड, कंट्रोल बैंड, 2 बैंड आपको दिखा, ठीक है। टेस्ट बैंड, एट द टेस्ट लाइन द एंटीजन लेबल्ड antibody complex is immobilized by binding to the monoclonal antibody in the test line to form a colored band, ठीक है। दूसरा है हमारा कंट्रोल बैंड, ठीक है। द फ्री कोलाइडल गोल्ड लेबल्ड antibody can move further and bind to the anti-human immunoglobulin to form a color control band, ठीक है। अगर आपको कंट्रोल बैंड अपीयर नहीं होता है, टेस्ट बैंड अपीयर होता है, द टेस्ट इज इनवैलिड। कंट्रोल आना मैंडेटरी है, ठीक है। विदाउट कंट्रोल हम लोग टेस्ट को इनवैलिड मेजर करेंगे, ठीक है। नाउ फ्लो थ्रू एसे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हेपेटाइटिस सी। दिस इज कार्ड ऑफ ICT ऑफ हेपेटाइटिस सी, ठीक है। ऐसे ही आपको HIV मिलेगा, HIV 1 and 2, ठीक। यहाँ पे 3 लाइनें हैं, 3 डॉट्स हैं, वहां पे क्या था? हमारा लाइन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डॉट्स हैं, पिंकिश डॉट्स दिख रहा है आपको, ठीक है। 3 डॉट्स हैं, टेस्ट, T1, T2 एंड कंट्रोल, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का ऐसे ही HIV का होगा, HIV 1 and 2 एंड कंट्रोल, 3 डॉट्स, ठीक है, ओके। दिस इज द फ्लो थ्रू एसे। वहां पे क्या था हमारा? कोलाइडल गोल्ड और सिल्वर। यहाँ पे प्रोटीन A इज डिटेक्टेबल मार्कर, ठीक है। प्रोटीन A इज यूज्ड फॉर द लेबलिंग एंटीबॉडी इंस्टेड ऑफ gold conjugate, right? Sample flow vertically through the nitrocellulose membrane as compared to lateral flow or ICT, okay. Flow through test can be used for both antigen and antibody detection. HIV tridot test is classical example, okay. Detects antibody to HIV1 and HIV2 separately, patient in serum, ठीक है। Test system is cassette form consisting of nitrocellulose membrane and absorbing pad. इसका प्रिंसिपल पूछते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन इज कोटेड ऑफ 3 रीजन, ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड कंट्रोल। सैंपल एंड बफर रिएजेंट आर एडेड सीक्वेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ following which they pass through the membrane and excess fluid is absorbed into the underlying absorbing pad, okay. As the patient's samples passes through the membrane, HIV antibodies if present bind to the immobilized antigen, ठीक। Test dots, protein A is conjugate present in the buffer, bind to the FC portion of HIV antibodies to give a distinct pinkish purple dots, separately of HIV1 and HIV2, ठीक है। Control dots, irrespective of whether the HIV antibodies are present or not, protein A can bind to any IgG present in the serum, and IgG protein A complex can further bind to anti-human immunoglobulin at the control line to give a pinkish purple dots,
ठीक है, कंट्रोल आना मैंडेटरी है, ठीक है, विदाउट उसके हम टेस्ट को इनवैलिड रीड करेंगे। ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा हेपेटाइटिस सी, ये है हमारा हेपेटाइटिस सी, ठीक है। यहाँ पे दोनों डॉट्स आपको दिख रहे हैं विजिबल, ठीक है, ये दिस इज द कंट्रोल टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ठीक है। आफ्टर रिजल्ट रीडिंग 10 to 20, नाउ वेस्टर्न ब्लॉट, ये क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन antibodies in sample containing mixture of antibodies each targeted against a different antigen of same microbes. तो डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉट कितने टाइप का है? साउदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट एंड ईस्टर्न ब्लॉट, सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। साउदर्न ब्लॉट का क्या है? डिटेक्ट द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ओके। नॉर्दर्न ब्लॉट्स का डिटेक्ट द एमआरएनएस, ओके, मैसेंजर आरएनएस। ईस्टर्न ब्लॉट का डिटेक्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, इपिटोप्स प्रेजेंट ऑन प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है। ये पूछते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, ईस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है, नॉर्दर्न में क्या होता है, ठीक है। ये चारों चीज आप पढ़ लो। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है? एक्सीलेंट इन स्पेसिफिसिटी यूज्ड एज सप्लीमेंट्री टेस्ट टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ एलिसा अदर द इम्यूनोअसे हैविंग हायर सेंसिटिविटी, ओके। वेस्टर्न ब्लॉट फॉर्मेट आर अवेलेबल टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन वेरियस डिजीज सच एज द HIV, लाइम्स डिजीज, HSV, herpes simplex viruses infections, सिस्टिसर्कोसिस, हाइड्रेटिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इन डिजीज के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट यूज करते हैं, ओके। हाँ, केमियोलुमिनेसेंट लिंक्ड इम्यूनोएसे क्लिया हमारे पास है सेंट्रल लैब में, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? इमिशन ऑफ लाइट ल्यूमिनेसेंस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? टीएमबी सबस्ट्रेट यूज कर रहे थे, कॉन्जुगेट यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन थ्रू द ल्यूमिनेसेंस, ठीक है, लाइट के थ्रू पूरा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? सिमिलर टू द एलिजा, हाउएवर द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय द केमियोलुमिनेसेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ल्यूमिनोल एंड एक्रिडियम ईस्टर, ये दो चीजें यूज होती है, ठीक है, दैट जनरेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक। जब हम लोग सैंपल लोड करते हैं मशीन में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे क्या होता था एलिजा में क्या होता था? हम लोग अलग अलग मैनुअली करते थे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? मशीन में सैंपल रिएजेंट लोड करते हैं, फिर हम लोग सैंपल लोड करते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा जो है केमिकल रिएक्शन थ्रू द लक्सोजेनिक लाइटोफोटोमीटर, ठीक है। फिर लाइट फोटोन कैन बी डिटेक्टेड बाय द फोटो मल्टीप्लायर, ओके, आल्सो कॉल्ड एज द ल्यूमिनीमीटर। इसमें क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम, केमियोलुमिनेसेंट सब्सट्रेट, प्रोडक्ट, लाइट फोटोन, ठीक है, डिटेक्ट बाय द ल्यूमिनोमीटर और फोटो मल्टीप्लायर। ये है मेन, ठीक है। थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन ये है मेन, इसको जानना है। यहां पे हम लोग क्या है ये? मैग्नेटिक पार्टिकल्स कोटेड विद एंटीबॉडी, ठीक है, ओके। ये है हमारा एंजाइम कॉन्जुगेट, ठीक है, ALP एंड HRP लेबल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। ये है हमारा पेशेंट सैंपल, ठीक है, हमने लोड किया। सैंपल को लोड करने के बाद क्या हुआ? ये जो है ये 3 रिएक्शंस होता है, इम्यूनो रिएक्शंस, सेपरेशन एंड डिटेक्शंस, ठीक है। देन सेपरेशंस में क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ। ये होता है माइग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? सेपरेट करता है बेटा, ठीक है, सेपरेट करता है एंटीजेंस को, एंटीबॉडी को और अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? केमियोलुमिनेसेंट जो हमारे पास इसमें लगा हुआ है मशीन में, ठीक है, ये इसको रीड करेगा टारगेट मॉलिक्यूल्स को, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। और उसके बाद फिर थ्रू द फोटो मल्टीप्लायर एंड रीड द रिजल्ट, ठीक है। ये है क्लिया मशीन्स, ठीक है, हमारी केमियोलुमिनेसेंस लिंक्ड इम्यूनोएसे। यही है हमारे पास एडवांटेज ऑफ क्लिया, 10 टाइम मोर सेंसिटिव देन एलिजा, further modified by using an enhancer the potentiate that the chemical reactions, okay. Most sample have the no background signal, that is the luminol compound do not themselves emits light, ठीक है। Measurement of chemiluminescence is not ratio unlike the measurement of fluorescence, immunofluorescence ऐसे, ठीक है। And color has limited applications in diagnostic microbiology compared to ELISA, ठीक है। Available for detection of antigen or antibody against the various infections such as the hepatitis virus, HIV, torch infections,
ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन एंड बायोमार्कर सच एज द प्रोलैक्टिन, इतने सारे टेस्ट हम क्लियर में करते हैं, ठीक है।